Hello everyone, good afternoon. Am I audible? Okay, great. So guys, we'll wait for another 5 to 10 minutes. We will have a speaker joining in soon. Till then, I request all of you all to mark your attendance in the chat box so that your trainers can make a note of it. All right, thank you. Hello, everybody. Can you hear me? Hi Manishi, this is Muskan. Thank you so much for joining us today. No, no. Firstly, I have to apologize to everybody because it was supposed to start at 2. It got delayed because of me, and I'm extremely sorry, people, that I am starting late. But so no problem, Muskan. You don't have to thank me. Thank everybody for taking time to listen to me. Yes, Yeah. thank you so much, Tessie, and all the students and trainers for joining us today. So let me introduce you to Manishi Saxena. She is a vice president with EXL HR and the head of corporate social responsibility. We also have Shalinder, who has joined us today. He is also a vice president EXL communication team. And Manishi will be taking a session today about leadership and growth, and will be sharing her own personal success story. So please make use of this opportunity to ask questions related to how you can become successful in your life. Thank you, and Manishi, over to you. Right. And Muskan, will they all be on mute or will they be able to unmute themselves? Hi Manishi, Tessie here. Will be able to Hi, unmute. Tessie.
They will be able to. Okay. So please feel free to, ask any questions. And I'm not going to really, I don't have slides, nothing. I'm just going to talk about my life and how I think I reached where I am. It's echoing. The lessons I learned, throughout my life, and today when I am almost going to be reaching in my 50s. What are the lessons that I always remember and I follow? Okay, so is that okay if I make it a story format? Everybody will be okay with that? Yeah, I see a Okay. lot of nods. And will you ask questions and will you also offer your story if it touches you or if you have a same kind of an experience? Is that all right? Okay. Okay. So why don't I start? Why don't I start? And let me start by thanking you all for giving me a chance to relive everything that I have lived in this life. Okay. So this is my story. So I was born in a very very a small town, not very small but small, called Dehradun. Do you know Dehradun? Have you heard of Dehradun? No, it is in UP. Yes, yes, people have. It's very famous for bakery. It is very famous for Masuri. It's a valley. So I was born there. Now, when I was born as a premature child, and the doctor said that I'm not going to survive because, of course, I was born premature, born in 7 months. And but I survived. 6 months I was kept away from everybody, but I survived. So the first lesson of my life that I hear from this story really was that, you know, in life we think so much about future and past and we worry about so much, okay? But there is always a superpower that is protecting you at all point of time, and whatever will happen to you, be it the birth, be it the death, anything, that is the power that will decide, and it will always be in your best interest, right? Okay, so that was the first lesson of my life that I learned from the story. Now, as I started going to the school, I started school in Jammu, where my father was posted, and my mother was a heart patient. So, because they could not cope up with the illness, they had to send me to my grandparents' place in Dehradun. Sorry. Okay, so they had to send me to my grandparents' place in Dehradun. Is it me? No. I request all the students to mute themselves. Thank you. Right. So I was sent to my grandparents' house, to be brought up. Okay, and before to be brought up when I was very very small, maybe 3 4 years old, and then my masis, and we all know who masis are. In India, masis are almost like mothers, and my grandparents, they started to bring me up. Meanwhile, my parents shifted to Dehradun. My dad got a transfer. And, when he got a transfer, I started to live with my parents. And as I started to live with my parents, my mother's health continued to deteriorate. So maybe at the age of, say, 9, 10, my son is 8 years old. एक मिनट पहले मुझे बताओ, आपको हिंदी प्रेफर कर रहे हो या इंग्लिश या मिक्स चलेगा दोनों? Put it in the chat box. Mix, na? I thought as much. Okay. So, so when I started to, grow up, I realized that, in India at that point of time, men knew nothing. And I'm not saying my father was not forward looking, but उनको कुछ आता ही नहीं था घर का काम. Okay. And we had, इंडिया में आपको बहुत लोग होते हैं जो घर पे आकर के सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए. वो कभी आते थे, कभी नहीं आते थे. सो फ्रॉम हम बहुत ही अर्ली स्टेज इन लाइफ,
मैंने घर के काम सीखे, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे वो सब्जी बनाना हो और जले हुए पराठे बनाना हो। तो मैंने 9-10 साल से ऑप्शन नहीं था तो वो करना शुरू कर दिया। उससे सबसे बड़ा फायदा, एंड दिस इज, ये एक सेकंड लेसन है मेरी लाइफ का। मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे बताऊंगी आपको, बट ये सेकंड लेसन है कि आप जैसे जैसे खुद के काम करते हो, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है और आप बाकी लोगों पे निर्भर होने कम हो जाते हो। और मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा मुझे आज कैसे हुआ। जब से ये कोरोना वायरस हुआ, मेरे घर में हैं जो मेरी मदद करते हैं, पर उनके पास बहुत काम है। आजकल पिछले 10-15 दिनों से मैं अपने सारे कपड़े खुद धो रही हूँ, खाना खुद बना रही हूँ और सब कुछ खुद कर रही हूँ। तो वो जो वक्त था जो उसने मुझे सिखाया, आज मेरे बहुत ही काम आ रहा है। और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज मैं बनाना चाहती हूँ उस प्रकार बनता है, उस तरीके से बनता है जिस तरह से मैं खाना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ा लेसन लाइफ का ये था कि जो जिंदगी के छोटे छोटे काम होते हैं और अपने काम होते हैं, चाहे वो एक गिलास उठाना ही हो, वो अपने आप आना चाहिए जिंदगी में, कभी किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि वक्त का पता नहीं। तो पहला लेसन ये था कि कोई है जो आपको देख रहा है तो वरी मत करो। दूसरा लेसन ये था कि आपको सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद जब मैं करीब 12 साल की हुई तो मेरी मदर की डेथ हो गई। ओके, एंड देन आई हैव टू स्टे विद माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय फादर रीमैरिड। तो मेरे फादर ने मुझे मतलब क्योंकि उनकी मैरिज हो गई थी, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो मेरा उनसे करीब 7-8 साल में शायद 2-3 बारी ही मिलना हुआ। ओके, और मेरी नाना नानी ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला। उस टाइम पे भी ये सब मेरे बहुत काम आया जो मैंने सीखा था। मैं स्पोर्ट्स में थी बहुत ज़्यादा। मैं डिस्ट्रिक्ट बेस्ट एथलीट थी देहरादून डिस्ट्रिक्ट की। तो बेसबॉल, बास्केटबॉल, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर स्प्रिंट, मैराथन, स्किपिंग, javelin, whatever you think, I did all. बट एक बारी क्या हुआ कि मैं हाई जंप कर रही थी। और Manishi, your video froze actually. Can you hear us? Let me try and call her. Yeah, I think the network is low. Yeah, let me just check. Okay, so I think Manishi has got some network issue. She will be joining us. I think she joined. If you have any questions, guys, you please ask through the chat box, or you can unmute yourself and you can ask question. Muskan, I'm there, but I can't see anybody. We can see you, Manishi. ओके, अच्छा, इससे पहले मैं दोबारा से बताऊं, आप लोगों को ठीक लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ? मतलब इससे कोई फर्क मतलब पड़ रहा है? ओके, They're all nodding their heads and saying yes. ओके। तो हाँ, so where was I? So I was very good in sport until one day मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं हाई जंप करने जा रही थी and I froze. Okay, and if I had done that, I would have broken my own record. Okay,
बट आई कुडंट, एंड फॉर मंथ्स आई कुड नॉट डू हाई जंप बिकॉज मेरे दिमाग में कोई डर था, ओके। और मुझे नहीं पता वो अननोन डर कहाँ से आ रहा था। फिर मैंने ये सीखा लाइफ में कि जब आपका कोई डर हो तो उसका सामना करना बहुत जरूरी होता है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने उस टाइम पे और ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे आसपास लोग खड़े होकर हंस रहे थे, because I am supposed to be the best athlete, I was supposed to be a diva, everybody would follow। और जब आप पे लोग हंसते हैं तो आपको वो ज्यादा लगता है। तो तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, why am I not able to jump। मैं वहां पास में जाती हूँ बार के और मैं रुक जाती हूँ। देन आई रियलाइज्ड उस टाइम पर एक उत्तराखंड में एक अर्थक्वेक आया था अराउंड 91। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस दैट इंडिया हैड टू फेस। पूरा गढ़वाल टिहरी सब बर्बाद हो गया था। And it was very very recent, and my friends, my classmates had gone to Goa at that point of time on a trip। I didn't go क्योंकि मैं वो पैसे कपड़े खरीदने के लिए यूज करना चाहती थी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे बजट क्रंच होता है जब आप स्कूल में होते हो ठीक है। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं पैसे सेव करूंगी और मैं कपड़े खरीदूंगी। सो आई डिडंट गो। सो आई वाज इन मिड्स ऑफ दैट अर्थक्वेक। रात को जब वो अर्थक्वेक आया तो मेरा बेड और मेरी दीवार जो थी वो धक 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 हिल रही थी। और उस टाइम पे दो बड़े स्टार्स होते थे, एक्चुअली तीन होते थे मेरे लिए, ओके। दो जो बाहर के थे, शायद आपने उनके बारे में सुना होगा, हो सकता है ना सुना हो क्योंकि आप वो ऑफ कोर्स मेरी जनरेशन से हैं। एक होते थे टॉम क्रूज, एक होते थे सिल्वेस्टर स्टेलोन, और एक हमारे यहाँ पे होते थे सलमान खान। तो मेरी जो वॉल थी रूम की, उसमें टॉम क्रूज और सिल्वेस्टर स्टेलोन के पोस्टर के बीच में एक दरार आ गई थी। एंड आई कंटिन्यूड टू एसोसिएट वो बार विद दैट लाइन। वो मेरे दिमाग में इतना घर कर गई कि कुछ भी सिक्योर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता था, मेरा वो घर गिर सकता था, कि मैं हाई जंप उसके बाद कभी नहीं कर पाई। पर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नहीं कर सकती, इट इज ओके, मैं बाकी चीजें अच्छे से करूंगी ठीक है, मैं बाकी चीजें अच्छे से करूंगी। तो ये था। उस टाइम पे एक चीज और मैंने सीखी कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लीडर बनने के लिए कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू decide what are your principles, sometimes not even have principles, because one of एक quality leaders की सबसे important जो मुझे लगती है कि अगर आप दूसरों की लाइफ से सीख जाते हो तो आप आगे बढ़ते जाते हो। कई बार बहुत लोगों के पास इतने हार्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप सोचते हो कि ये कैसे कोप कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्सपीरियंस से सीख जाते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो मेरे दो एक्सपीरियंसेस हुए व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। Class 11th में I won the elections for my vice captainship, okay, vice captainship, and I became extreme in school। और मैं काफी मतलब उसमें थी, best, captain with the highest votes। Studies were okay, I never thought studies were important from me। I'm sorry if I'm demotivating you, but मुझे सिर्फ 60% चाहिए थे, ओके। मेरा गोल था, मेरे नाना जी मुझे बोलते थे तुम्हारे फ्रेंड्स के सबके 97 आते हैं, तुम्हें सिर्फ 60% चाहिए। तो मैं कहती थी मुझे 60% चाहिए, और मुझसे बहुत गुस्सा रहते थे वो। कई बार वो हफ्ते हफ्ते जमीन पे सोते थे क्योंकि उनको लगता था ये कहाँ से आ गई हमारी लाइफ में। सारा का सारा घर का सामान ड्रामेटिक्स के लिए चला जाता था, लैम्प से लेकर के पर्दों से लेकर के सब कुछ, ओके। और वो गुस्सा होते थे कि मतलब मैंने इतनी कमाई की है लाइफ में और ये लड़की सब कुछ बर्बाद करी है। पढ़ना ये चाहती नहीं, खाना बनाना ये सीखना नहीं चाहती, इसको लगता है इसको सब कुछ आता है, बिकॉज ये एक लड़की की तरह लाइफ नहीं जीना चाहती, शी इज टू लिबरल, ओके। एट द सेम टाइम ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दूध जो है वो नाली में चला जाता है, रोज वो बहता हुआ देखते हैं। तो वो मुझसे बहुत परेशान थे। और मैं ऑफकोर्स उस टाइम पे इतनी हाई ट्रिप पे थी क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, फैन फॉलोइंग थी इन देहरादून इन वेरियस स्कूल्स बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। तो अब जब आप उस नशे में होते हो ना जीत के, तब आपको पता नहीं लगता कि हार कितनी पास है, ओके। तब आपको पता नहीं लगता कि हार कितनी पास है, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो 11th स्टैंडर्ड में मैं मतलब मेरी प्रिंसिपल ने मेरे को रखा हुआ था टू स्पाई ऑन अदर टीचर्स। एवरीथिंग वाज सो गुड,
teachers loved me, you know, principal loved me, other schools everybody loved me. Dramatics I was the best star, debate I was the best star, पढ़ने में zero, but okay, everything was fine. 12th में हेड कैप्टनशिप का वो आया, क्या कहते हैं, जब आप compete करते हो elections में, right? This was the second elections I would have competed, and I really wanted to be the head girl or head sports girl. अब जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो जो आप किसी की नहीं सुनते और आपको लगता है आपको सब आता है, आपका फेलियर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये थर्ड बड़ा लेसन है मेरी लाइफ का। मेरा फेलियर उस साल वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि मैंने किसी की ना सुन के मेरी प्रिंसिपल ने हर पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया। मैं एक ही कैंडिडेट थी जो 5 पोजीशन के लिए नॉमिनेटेड थी, ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ compete कर रही थी, उसने मुझे समझाया कि देखो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे अगर तुम 5 पोजीशन के लिए खड़े होगे, क्योंकि लोग कोई तुम्हें हाउस कैप्टन के लिए देगा, कोई तुम्हें हेड कैप्टन के लिए देगा, कोई तुम्हें स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए देगा, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तुम एक छोड़ दो, ओके। और यू नो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बट साथ में मेरी कॉम्पिटिटर भी थी, तो ऑफ कोर्स यू नो आप सोचते हो कि क्या है ये, क्यों ऐसा, मतलब जो भी है व्हाटएवर यू नो। तो लोगों ने मुझे समझाया नहीं 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 नहीं, यू नो बिकॉज शी इज आल्सो कंपीटिंग, शी माइट बी सेइंग दिस टू यू। आई डिडंट रियलाइज एंड आई लॉस्ट दोज इलेक्शंस, okay. For the first time in my school I had a loss of reputation, okay, and I am so glad that I had that, okay, because it made me realize कि जो आपका कॉम्पिटिटर होता है ना, जरूरी नहीं होता कि वो आपके बारे में गलत ही सोच रहा, ओके। तो पहले फ्रेंडशिप को रखना चाहिए, फिर किसी और को कॉम्पिटिटर की तरह देखना चाहिए, एक ही। दूसरी बात, जब आप जीत रहे होते हो कितना जरूरी होता है अपनी हार को याद करना, ओके, क्योंकि उस टाइम पे आप हारने से बच सकते हो अगर आप अपनी हार को याद करो, ठीक है। वो जो एक नशा होता है ना, उसमें रहने से बेटर है कि आप देख सको कि आप क्या आप हारे थे और आपने उससे क्या सीखा और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे लिए यू नो बहुत बड़ी हार थी जो मुझे आज तक याद है, और वो सिर्फ इसलिए हुई बिकॉज मैंने कंटिन्यू किया कि मैं जितने भी मतलब पोस्ट थी सबके लिए मैं खड़ी हुई। आई स्टिल मैनेज टू गेट द मैक्सिमम वोट्स, बट इमेजिन देयर वाज नो रिजल्ट, ओके। तो वो इम्पोर्टेंट था। तीसरी चीज यू नो, जब मैं अपने नाना नानी के साथ यू नो जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरे मामा मेरी मामी मेरे साथ मेरे को थे, वो लोग भी थे वहाँ पे, उनके 2 बच्चे थे, मेरा भाई सौरभ और आभा मेरी बहन, और साथ में मेरी मासी रहती थी जिनकी 3 बेटियां थी ना। वो लोग सब अपनी फैमिली के साथ डिनर्स पे जाते थे, यू नो पेरेंट्स चिल्ड्रन, और मेरे पास कोई नहीं था क्योंकि नाना नानी तो जाएंगे नहीं। पर मेरे नाना नानी बहुत पढ़े लिखे थे, वो till the age of 97 my nana ji was teaching people English, maths, whatever, okay, and my nani was a lecturer in a school, okay, and they both had gone to boarding अपने टाइम में, तो वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे, लेकिन वो इतने हम्बल थे और वो इतने हम्बल थे कि वो ही 4 बजे उठना, उसके बाद एक पहले जमाने में ना एक ठेकी होती थी, आप किसी को पता है ठेकी क्या होती है? नहीं, एक बर्तन होता है, दूध लेने जाते हैं उसके गाय के अस्तबल में तो वो जाते थे वहां पे दूध लेने के लिए, और सुबह 4 बजे उठते थे, मुझे भी 4 बजे उठाते थे। तो यू नो तो मैं उनके साथ वो वाली लाइफ जी रही थी, तो उनके साथ कहीं घूमना वूमना नहीं, बट वो मेरे बर्थडे बहुत अच्छे से करते थे, तो वो बहुत ही अच्छी बात थी। बट क्या होता था, मैं उसको मिस करती थी। और मेरे 1-2 रिलेटिव्स ने मुझे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, ऑफ कोर्स मेरी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फर्स्ट डिवीजन थी, बट कभी भी 90s में नहीं गई, वो 60-70 के आसपास रही, क्योंकि मैं एग्जाम हमेशा 1.5 घंटे का मेरा टाइम था कि मैं 1.5 घंटे बैठूंगी एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी, जो हुआ है वो हुआ है। एंड दिस आई डोंट वांट टू टीच यू रॉन्ग थिंग्स, बट इट वर्क्स फॉर मी, ओके। तो उसके बाद वो लोग सब अपनी फैमिलीज के साथ जाते थे, एंड माय ओन रिलेटिव्स ट्राइड टू स्पीक टू मी एंड टेल मी
कि अब आप चले जाओ, अपने पापा के पास चले जाओ, यहाँ कब तक रहोगे, हम कब तक ध्यान रख पाएंगे, हमारे पैसे, हमारा ये वो सब वो सब मैंने देखा। तो मुझे लगा कि ऐसे टाइम पे अगर मैं किसी और की हेल्प करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो हमारे यहाँ स्कूल में एक ग्रुप होता था, LTS, लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस। सो आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन। और वहां से हम जाते थे चशायर होम, वहां से हम जाते थे चशायर होम। तो जब मैं चशायर होम जाती थी, हमारे वहाँ पे चशायर होम में वो बच्चे बहुत थे जिनकी कुछ फैकल्टी ठीक से काम नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाती थी वो गाना बहुत अच्छा गाते थे और हमें हर शुक्रवार के शुक्रवार वहाँ जाना होता था, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ द LTS। तो मेरे को ऐसा लगा, और मेरे पास बहुत कम पॉकेट मनी होता था, कभी किसी से मांगा, कभी किसी से मांगा, कजन से उधार लिया तो वापस देना होता था। बट उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन चशायर होम बना। आज भी मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे किसी की हेल्प करनी है तो मुझे सबसे पहले चशायर होम याद आता है। ठीक है। वो इसलिए याद आता है क्योंकि एक तो मेरे जो स्कूल के सिस्टर्स और फादर्स थे उन्होंने मुझे जोड़ा। दूसरा, मैं सुबह सुबह जाकर के, हमारे स्कूल में एक सेंट फ्रांसिस चर्च है जिसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, और एक चैपल है जिसमें मैं सुबह जाकर के रोज प्रे करती थी। और लोग मुझसे पूछते थे आप तो हिंदू हो, आप क्यों चैपल में जाकर के प्रे करते हो, वो भी सिस्टर फादर के। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आई लर्न दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलीजन सारे एक ही है। द ओनली रिलीजन दैट मैटर्स इज ह्यूमैनिटी। Okay, so that was my lesson. And Cheshire Home told me that my life is not bad. Why can't I just appreciate, whatever I have of this life? Okay, whatever I have of this life. Okay, तो वो हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली आई अपने फादर के पास। मेरी स्टेप मॉम को ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई एम अ लिटिल, व्हाट यू से, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, ओपिनियंस भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मोल्ड होना भी डिफरेंट है। तो आई ऑफ कोर्स उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन भी पड़ना था, क्योंकि अब मेरे को कॉलेज की पढ़ाई करनी थी। तो मैंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, जैसे कि कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जाकर के यू नीड पीपल हु कैन स्टैंड बिहाइंड द बूथ्स एक्सेट्रा। तो आप बूथ में खड़े हो, आपको पर डे आई यूज्ड टू गेट 200 rupees and you used to get lavish खाना in the hotels जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती थी। So I used to do that। महीने के 500-600 रुपए बन जाते थे, उससे फीस हो जाती थी। नहीं तो मेरे फादर भी दे देते थे फीस, मेरी नानी भी ऑफकोर्स देती थी। तो तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज उससे ये इंडिपेंडेंस और भी बढ़ी, और उससे ये पता चला कि आप जो हो खुद मतलब एग्जिस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप उस मोल्ड से नहीं निकलोगे ना, तो आप डर के ही रहोगे। कॉलेज में अगेन मैंने जो कोर्स लिया वो था साइकोलॉजी ऑनर्स। अब बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स था, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स से लेके एक्सपेरिमेंट से लेके सब कुछ था। और सारे लोग चले जाते थे, जो फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश वाले होते थे वो सब चले जाते थे। हम साइकोलॉजी वाले बैठ करके एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक्सपेरिमेंट। अभी तक तो मैंने आपको थोड़ी बोरिंग बातें बताई है, बट मैं आगे के लेसन में आपको इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी। तो वो करते रहते थे। तो जब ऐसा हुआ, बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुई, कहाँ से पैसे आए। थैंकफुली मेरा एडमिशन JMC में हुआ, क्योंकि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से रिकमेंडेशन चली गई थी देहरादून से। तो वो पढ़ाई अच्छी हो गई। अब आया टाइम मास्टर्स करने का। तो मैंने मास्टर्स किया। मैं MBA करना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे MBA करने के लिए। मेरे पापा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं था, मगर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आई वांट टू, मेरे को HR करनी है, तो HR के लिए साइकोलॉजी हमेशा से करनी थी, तो मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लेती हूँ। ठीक है। अब उस कोर्स में करीब 2-3 हज़ार लोग अपीयर होते हैं। मुझे पता नहीं मैं कैसे क्वालिफाई कर गई। और मैं एक और चीज के लिए क्वालिफाई की थी जिसका मुझे आज तक दुख है। आप लोगों ने कैट सुना है, एक एग्जाम होता है, सुना है? तो मैं कैट में माइका के लिए क्वालिफाई कर गई थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू मास कम्युनिकेशन, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसका मुझे आज तक रिग्रेट है। सो मैंने कंटिन्यू किया अपनी पैशन जो साइकोलॉजी के लिए था,
और मैंने सोशल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मास्टर किया, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी भी इज अबाउट एडवर्टाइजिंग, सोशल साइकोलॉजी इज अबाउट हाउ टू डू सर्वे, सोशल साइकोलॉजी इज अ लॉट अबाउट बिल्डिंग अ सोशल सेंटिमेंट। तो मैंने वो किया। तो लेकिन मेरा जो ड्रीम था एमबीए का वो अधूरा नहीं रहा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बिलीव करना चाहिए कि कोई है जो आपको देख रहा है। माय फर्स्ट लेसन इन लाइफ। ओके, तो उसके आगे बढ़ते गए, फिर उसके बाद पहली नौकरी क्रॉम्पटन रीज के साथ, वो जहाँ मैंने अपनी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग की थी, वहां पे मैंने वो नौकरी को मना कर दिया क्योंकि मैं बड़ौदा नहीं जा सकती थी एक प्लांट में काम करने के लिए। फिर मैंने एक जगह ज्वाइन किया, HRD फाउंडेशन। एंड HRD फाउंडेशन वो ट्रेनिंग करते हैं। कभी आप लोग जब कॉर्पोरेट में काम करोगे आप सुनोगे MBTI के बारे में, एक टूल होता है, वो कंपनी मैनफोर्ड अलायंस वो टूल लाई थी इंडिया में। तो मैंने वहाँ पे एज HR कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर काम करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से मैं GE कैपिटल गई, और GE कैपिटल में मैंने HR के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा आपको 3 महीने HR और ऑपरेशंस दोनों करना पड़ेगा। मैंने दोनों किया, और फिर वहाँ से मैं काफ़ी अच्छा ट्रैक पकड़ा मैंने। और क्या कहते हैं, I think I did well. I did well. Now during that time I found my husband also 1992 जब मैं दिल्ली आई कॉलेज के टाइम में, he was uh, in and around my apartment area, और वो मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे। तो I met him and we were a group of 3 people, मेरी 3 कॉलेज की फ्रेंड्स और मेरे 2 अपार्टमेंट के फ्रेंड, उसमें से एक मैं थी। मेरे 2 अपार्टमेंट के फ्रेंड थे अमित इज माई हस्बैंड एंड मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। और मेरे 2 कॉलेज की फ्रेंड्स थी नेहा एंड निहारिका। हमने बहुत सारी चीजें की जो शायद आप अपने पेरेंट्स को मत बताना कि मैंने बताया, नहीं तो मेरी डांट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव के पास फार्म हाउसेज होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तो कार नहीं थी, मैं तो वो क्या स्टैंड कहते हैं ना जब आप चढ़ते हो बसेस में, तो मेरे घर से 704 जाती थी मेरे कॉलेज, ठीक है। तो उसमें हमारा लेडीज स्पेशल या स्टैंड चलता था, ठीक है। तो मेरे पास तो गाड़ी थी नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास गाड़ियां थी। तो अब हमारे को फार्म हाउस में जाना था, ठीक है। अब दिल्ली में तब ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक था, ना आप दूर जा सकते थे। तो हमने एक बार एक गाड़ी उठाई, ओके। अब मेरे फ्रेंड ने अपने फादर की गाड़ी चुराई इन द सेंस उसने चुपके से निकाला, उसको गाड़ी चलाना अलाउड था, उसके पास लाइसेंस भी था। हम लोग तीनों एक फार्म हाउस में गए, हमने वहां पे हॉर्न दिया और हमने कहा भैया साहब ने बताया कि हम आने वाले हैं। उसने कहा नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं बताया, साहब है। उसने कहा नहीं, तो कोई था ही नहीं। तो हम अंदर चले गए और हमने पूरा दिन उस फार्म हाउस में बिताया, उनसे खाना वाना मंगवाया, जो भी कुछ किया। अब वो बहुत ही बड़ा रिस्क था लाइफ का, अगर आज देखती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मेरा बताना आप लोगों को इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड इज सो नॉट सिक्योर, ओके। जो उस टाइम पे हमने किया और जिसने हमें थ्रिल दिया, ओके, वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती थी। और इसका मुझे एहसास तब हुआ जब जिन्होंने जेसिका लाल, आपने, मुझे पता नहीं आपने कभी पढ़ा है उनके बारे में या नहीं पढ़ा, जिन्होंने जेसिका लाल को मारा था, उन्होंने एक बारी मतलब हमारे घर में, हमारे घर के आसपास हम लोगों का कुछ पीछा किया उनके कजिन्स के साथ। और उस दिन मुझे समझ में आया कि दुनिया में अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में होती है। कोई भी चीज ऐसी इररिस्पॉन्सिबल मत करो कि कल को आपके पेरेंट्स को सफर करना पड़े आपकी वजह से, ठीक है। क्योंकि जब मैं पूरा दिन गायब थी और मेरे पापा को पता नहीं चला पूरे दिन मैं कहाँ थी, जब मैंने शाम को उनका हाल आकर के देखा, वो बहुत ही बुरा था, ठीक है। तो दिस इज अनदर लेसन, हमेशा जो भी करो रिस्पॉन्सिबली करो। थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एज में थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नहीं, ओके। तो ये हुआ, फिर मैं नौकरी करती गई। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे मेरा MBA कैसे मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में काम करना और अच्छे से काम करना। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, बार्कलेज में मैंने बहुत ज्यादा ज्वाइन करी। उसके बाद परेशान हो गई क्योंकि इतना काम था वहां पे, सब लोग बाहर बैठते थे इंडिया के, तो जितना सेंटर था मुझे ही
चलाना पड़ता था और उसको पूरा ईट ईट रोड़े से लेकर के टेली कम्युनिकेशन से लेकर के ऑपरेशन सेट करने से लेकर के इंटरनल क्लाइंट्स ढूंढने से लेकर के सब कुछ मुझे करना पड़ता था। और उस टाइम हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जिसके साथ हम ये ऑपरेशन ट्रांसफर कर रहे थे, तो ये सब करना पड़ता था और मैं बहुत परेशान हुई थी। पर जब आप परेशान होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपकी परेशानी आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है। जब वो पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो गया, सब कुछ हो गया, बार्कलेज में करीब 10 लोगों को, ओके, 2 लाख में से 10 लोगों को MBA दिया जाता था वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट के साथ शिकागो में, और उस काम की वजह से मुझे वो MBA मिला। तो वो जो पहला लेसन था मेरी लाइफ का कि कोई आपको देख रहा है, देयर इज समबडी वॉचिंग ओवर यू, ओके, वो सही है। आपके जो डिजायर्स हैं वो जरूर फुलफिल होते हैं, बट उसका टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ इज अबाउट कर्मा। तो तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो मैं डिफिकल्ट फेज से गुजरी, कि मेरे पास होश ही नहीं था काम के अलावा, और मैं उसको बहुत डिफिकल्ट फेज समझती हूँ अभी भी, क्योंकि मैं सोती ही नहीं थी, मैं काम ही करती रहती थी। मुझे उसको इतना स्माइल के साथ लेना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज समबडी जो मेरे बुरे कर्मों को काट रहा था, ठीक है, और उन बुरे कर्मों को काट करके मेरी अच्छे टाइम की तरफ ले जा रहा था। और ये लाइफ का लेसन इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि आज भी मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ कई बार, ओके, बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मैं अपने आप को समझा नहीं पाती कि दिस इज हैपनिंग टू मी बिकॉज आई माइट हैव डन समथिंग इन माय प्रीवियस लाइफ टाइम्स, ओके, मैं नहीं समझा पाती क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट लेसन है, ओके। और मेरी सारा ओरिएंटेशन ये होता है कि ये टीम मेंबर है, ये काम नहीं करता, ये टाइम पे चीज नहीं देता, या ये जो है इस स्किल के साथ इसको कैसे ले आए, या फिर मेरा सर्वेंट है इतनी बदतमीजी से बात कर लेता है। पर मुझे उस टाइम पर मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि जब ऐसे लोग आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, वो कुछ चैलेंज करने आते हैं, ठीक है, कुछ चैलेंज करने आते हैं। जैसे कि किसी इंसान को अगर बहुत गुस्सा आता है, अगर उसको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और वो गुस्सा ना करे, तो उसने एक लेसन सीख लिया है, ठीक है। दूसरा, उन इंसानों ने आकर के, क्योंकि वो ही इंसान किसी और के साथ बहुत अच्छे होंगे, आप देखोगे जो लोग आपके साथ बुरे हैं ना, वो किसी और के साथ बहुत अच्छे होंगे और किसी जगह पे वो शाइन कर रहे होंगे। तो आपके एनवायरनमेंट में जो लोग आते हैं वो आपके कर्मों के अनुसार आते हैं, आपको कुछ सिखाने आते हैं, ठीक है। आपको जो बोलना है उनको मन में बोल लो, जो बोलना है बोल लो उनको, लेकिन जब भी प्रेयर करो ना, इस तरह से प्रेयर करो कि ये मुझे सिखा रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे आप चैपल में जाके प्रे करो, चाहे आप मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे आप मेरी तरह बुद्धिज्म करो, या दुर्गा माँ की वो करो उपासना, हमेशा ये याद रखो कि भगवान मुझे अंदर से ये दो कि मैं इन लोगों के लिए बुरा ना सोचूं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग जो आपको सिखा करके जाएंगे वो कोई नहीं सिखा पाएगा। जो मेरी दोस्त जो मेरे साथ कंपटीशन में थी, ठीक है, जो भी उसकी भावना हो, उसने उस टाइम इलेक्शंस के टाइम मुझे कुछ सिखाया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। उस टाइम में चाहे 10 दिन 15 दिन आप उनको कोस लो, जो भी करो, बट अगर आप अपना ओरिएंटेशन लेते जाओगे कि नहीं, मुझे ये इग्नोर करना है कि ये इंसान मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे ये इग्नोर करना है कि और उस इंसान को बताओ कि प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ उसको बताओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे चल के क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसको बताओ, ओके। तो वो बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से प्रे करो कि आपके कर्मास न खराब हो। ये मेरे लिए एक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था। तीसरा लेसन जो आपने अभी शायद देखा होगा, वो होता है कि आप लोगों से कैसे दिल से कनेक्ट करते हो। मुझे लगता है कि अगर आप साफ सच्चाई से बोलते हो और अपने बारे में, चाहे अपनी गलतियां भी हो, आज मैंने आपको अपनी बहुत सारी गलतियां गिनवाई, ओके, अगर आप ह्यूमिलिटी से आप लोगों को अपने आप को एक फ्री फ्लोइंग वे में एक्सप्रेस करो, तो लोग आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द हार्ट।
So the biggest lesson in the life is to learn from the hard. नाउ आई हैव मैरिज हो गई, बार्कलेज हो गया, सब कुछ आ गया। एक दिन बार्कलेज में मैं अपने डेस्क पे बैठी हुई थी। अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी बिकॉज मेरा एमबीए खत्म हो गया था। आई वांटेड टू गो बैक टू एचआर। मैं उस टाइम चीफ ऑफ स्टाफ का रोल कर रही थी विद माय सीईओ हु इज माय मेंटर आल्सो। तो मेरे को लग रहा था यार मेरे को तो एचआर करना है, मुझे से कहाँ स्ट्रैटेजी करा रही है और नहीं करनी मुझे स्ट्रैटेजी। तो उस दिन एक कॉल आया और वो कॉल था जो मेरा भाई सौरभ था, उसका प्लेन क्रैश हो गया था। वो जो कैन यू हियर मी, उसका प्लेन क्रैश हो गया था। वो गोवा में था और 2 साल से मैंने सौरभ से बात नहीं की थी क्योंकि हमारी ट्रिवियल मैटर पे लड़ाई हो गई थी, बहुत ही छोटी चीज पे लड़ाई हो गई थी। ठीक है, 2009 की बात है। और मेरे हस्बैंड का फोन आया रोते हुए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, और तब तक मेरे मामा जो मेरे को मेरी अपब्रिंगिंग में साथ दे रहे थे, उससे पहले वो भी चले गए थे सौरभ के साथ। ओके, उनकी भी डेथ हो गई थी। और सौरभ और मैं इस तरह से बड़े हुए थे कि उसका जो RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज था, मैं उसके साथ स्विमिंग करती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, हमारी हमेशा एथलेटिक्स पे बेट लगती थी। तो मेरे लिए वो मेरी लाइफ था, माय ब्रदर। कजिन था बट ही वॉज माई लाइफ। अब ये कॉल आया, इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया, कहते हैं घर आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं सौरभ। मैंने कहा क्या हुआ सौरभ को, कहते हैं नहीं रहा। मैंने कहा कैसे हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, 1 साल की बेटी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का टॉपर है, NDA का टॉपर है, इंडिया का एक ही पायलट है जो रात को शिप पे लैंड कर सकता है, उसका प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है, ही इज अ टेस्ट पायलट, उसका प्लेन नहीं क्रैश हो सकता। तो प्लेन क्रैश हो गया। अब वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था और उस डिफिकल्ट टाइम ने मुझे बहुत जिंदगी के लेसन दिए। 4-5 साल तक तो मैं सो ही नहीं पाई क्योंकि उसी टाइम में मेरी नानी भी गुजर गई, क्योंकि उनसे वो लिया ही नहीं गया, वो शौक लिया ही नहीं गया। तो जब सौरभ का वो हुआ तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कई बारी आपको ना बहुत जिंदगी में हार्ड होना पड़ता है लोगों को हार्ड मैसेजेस देने के लिए। क्योंकि अच्छा तो सब लोग सबके सामने बोल लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को सच में बताते हैं कि आप इस चीज को ठीक करो, आपको आगे फायदा होगा। क्यों और ये जरूरी है क्योंकि आगे जाकर के लोग आपको याद रखेंगे। बनस्पत की आज आप बैठे हो और आप बोलो लोगों को कि आप अच्छे हो, ओ यू आर दिस, ओ दिस इज सो गुड, दिस इज दैट। बट अगर आप सच में लोगों की बारीकियों में जाकर के उनको बताओ, ओके, तो बहुत बहुत फायदा होता है। और टफ एक्सटीरियर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी क्योंकि मैं 2 साल से सौरभ से बात नहीं कर रही थी, बट मेरे हस्बैंड और सौरभ दोनों बात कर रहे थे। और थोड़े दिन पहले ही कोचीन में सौरभ ने अमित को INS कृष्णा को जानते हो, जो अब अंडरग्राउंड हो गई है शिप, उसका टूर कराया था मेरे हस्बैंड को। तो माय हस्बैंड वाज इन अ बैड स्टेट। फिर मैंने अपनी मामी के पास सोचा, वही मामी जिन्होंने मुझे बोला था कि आप घर छोड़ के चली जाइए, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, उनके बारे में सोचा और अपनी छोटी बहन आभा के बारे में सोचा कि अब इनका क्या होगा। तो थैंकफुली आई वाज अर्निंग वेल, एवरीथिंग वाज गुड। तो मैंने और आभा बहुत छोटी थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं रहूंगी। मैं सीधे सीधे गई, मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ देना कि मैं उसका फ्यूनरल ठीक से करवा सकूं। ठीक है, मुझे ये स्ट्रेंथ देना क्योंकि इस टाइम पे कोई किसी लायक नहीं है, सबको गोवा जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे विदाउट क्राइंग, एंड माय हस्बैंड फाउंड मी वेरी वेरी अनसिंपैथेटिक। उनको लगा कि मतलब कि इसकी तो ऑलमोस्ट दुनिया ही चली गई है, तो ऐसा क्या। तो ही फाउंड मी वेरी अनसिंपैथेटिक। बट उस टाइम पे मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सबसे पहले सबके गोवा जाने का अरेंजमेंट किया, इंक्लूडिंग माय नाना नानी, ओके, टू गिव हिम अ सेंड ऑफ बिकॉज और उसकी बॉडी के सिर्फ टुकड़े ही मिले, राइट, इन अ फ्लैग, ओके, सो वी कुड सी इट, बट to me an army arranged everything, but that was very important. So one of the lessons that I learned in my life is that anybody who tells you anything which is wrong, okay, or has a tough exterior is not always wrong. क्योंकि कई बार अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको
इस तरह का एक्सटीरियर वेयर करना पड़ता है। और कई बारी टफ होना आपकी जिंदगी का, या लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंपैशन होता है, सबसे बड़ी सहानुभूति होती है। ठीक है, तो कभी आपके साथ कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करे और आपके साथ टफ हो, चाहे वो लाइफ ही हो जो आपको सिखा रही हो, प्लीज प्लीज उसको आप एम्ब्रेस करना। ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन है। ओके, उस और दूसरी चीज जो मैंने सीखी, जो मेरी मैरिज ने मुझे सिखाई, मैं एक फ्रॉम अ वेरी लिबरल कास्ट फैमिली आई वाज मैरिड इनटू अ बनिया फैमिली। अब ऐसी फैमिली में ना आप जाओ तो गिफ्ट बहुत होते हैं, बिकॉज उनको ट्रेडिशन अलग होता है, ये सब होता है। तो मैंने एक चीज सीखी, मैं बहुत रेडिकल थी, मैं हर चीज को फेमिनिज्म इस इन चीजों से देखती थी। बट मैंने इस रेडिकलिज्म को छोड़ा। ओके, और मैंने ह्यूमन टू ह्यूमन, आफ्टर आई हैड वेरी डिफिकल्ट इयर्स ऑफ मैरिज, ह्यूमन टू ह्यूमन अपने इन लॉज के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया। और आई कैन टेल यू दैट टुडे I am possibly more important to my mother-in-law who survived, but my father-in-law doesn't. And even for my father-in-law, more than their children, I mean to them. तो ये मेरी लाइफ है अब तक की। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे, किड्स गेट यू जॉय। एक मूवी है तमन्ना, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, वो पूजा भट्ट की मूवी है। उसमें है एक सेंटेंस कि घर से है दूर मस्जिद बहुत, चलो ऐसा कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ओके, सो माय सन गेट्स मी अ लॉट ऑफ जॉय। तो आप लोगों को लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपने रॉक बॉटम हिट कर लिया है या कोई प्रॉब्लम है, ट्राई एंड बी लाइक अ चाइल्ड, ट्राई एंड प्ले विद द चाइल्ड। आपको दिखेगा कि जो आपके लाइफ के लेसन्स जो आपके पास नहीं है, दे मूव ऑन सो क्विकली। वो रोते हैं और दूसरे मिनट हंस रहे होते हैं, दे मूव ऑन सो क्विकली। वो आपके मुंह पे आपको आपकी गलत बात बता देते हैं, और जब वो हंसते हैं यू आर बाउंड टू स्माइल। तो कभी भी आप रॉक बॉटम हो, किसी भी बच्चे को, जरूरी नहीं हो आपका अपना हो, ट्राई एंड मेक दैट किड हैप्पी एंड यू विल गेट द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है और ये मेरे लाइफ के लेसन्स हैं। आई होप आपको अच्छे लगे और आपने, मेरे को पता नहीं सीखा कि नहीं सीखा, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं सिखा दिया हो, बट मेरे लिए इसी से मिलजुल के मैं बनी हूँ और इसी से मिलजुल के मेरी लीडरशिप बनी है। अगर है तो अब मैं रुकती हूँ, अब आप लोगों को जो पूछना है मुझसे पूछिए। बोर तो नहीं किया ना आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। You all can unmute and speak if you want. If you want to share any story of yours which is as similar to Manishi. हाँ, अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप मुझे अपने घर की तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में जिससे शायद मैं कुछ सीख जाऊं, तो प्लीज करिए। Some students are putting comments in the chat box, Manishi. अच्छा। ओ, आप ऐसा मत बोलो, यू ऑल आर ग्रेट टू लिसन टू मी। थैंक यू। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को और कुछ शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मे बी सम लेसन ऑफ योर लाइफ दैट आई माइट नॉट हैव लर्नड इन माय लाइफ येट, जो मैंने नहीं सीखा हो। नहीं, टेसी, नथिंग फ्रॉम यू? लेट मी कॉल आउट नेम्स। अदिति, तुम सिर्फ हंसोगी या कुछ पूछोगी? यू एंड आई आर वेयरिंग पिंक टुडे। कुछ शेयर करना है? नहीं? बर्नाली, Aditi is laughing even more. Nobody? Sayanika, I had never heard this. मैंने कभी ये नाम पहले नहीं सुना। मैम शेयर करना है थोड़ा। मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में जॉब करती थी, ठीक है। हाँ तो जी। उधर कोरोना का टाइम में बोला जाए तो मेरा घर से वो ब्रांच का डिस्टेंस था 70 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है अच्छा। ना। तो कुछ दिन बोला तो मेरा घर का बगल में एक ब्रांच है, ठीक, तो बोल तुम उधर जाओ,
ठीक है, तो मैं कुछ दिन गई ऑफिस, तो दिन बोला जाए प्रेशराइज कर रहे हैं मेरे को जे तुम अप्रॉक्स 70 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो मैंने बोला था, तो बोला मैंने से कोरोना टाइम है कुछ दिन, तो मेरे को चाहिए तो बात में ज्वाइन कर सकती वो ब्रांच में, दूर वाला ब्रांच में, वो बहुत दूर है ना, 70 किलोमीटर अप्रॉक्स मेरे घर से। 70 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ मैम, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर को, तो सर बोलो अगर तुम प्रॉब्लम हो तो जॉब छोड़ दो। ठीक है मैम, ये तो डिफिकल्ट है जॉब छोड़ना। जॉब इतने दिन में जॉब किया ना, पता है मैम उस टाइम मैंने क्या मैंने ट्रेन में ट्रैवल करती है ना, तो दिसंबर महीने में उस पॉइंट था इधर। ठीक है मैम, तो मैंने 70 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करती थी, तो इतना लेट हो जाता ना समटाइम्स, तो मैंने अकेला ट्रेन में लेडीज में अकेला आई थी। ठीक है मैम, इतना डर। हाँ मैम, अकेला लेडीज में मैंने इतना लेट हो जाता ना घर रतन में टाइम में, तो मैंने सब मेरे मैनेजर था, एरिया मैनेजर था, उसको वो सब सर ये सब हो रहा है, बोले ठीक है देखो ना इसके बाद तो सामान आ रहा है, ठीक हो जाते हैं। हाँ ठीक है चलो। तो उसके बाद कोरोना टाइम में सर को रिक्वेस्ट किया, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, सर जॉब चाहिए मेरे को, जॉब नहीं छोड़ना है ना। तो बोले नहीं सॉल्यूशन नहीं है तो तुम उधर ही जाओ। तो मैंने मैम गई थी 70 किलोमीटर अप्रोक्स मैं गई थी, 4 दिन गई थी। उसके बाद मेरा तो फीवर आ गया। ठीक है, उसके बाद फीवर आ गया मेरा, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर कि सर मेरा जॉब चाहिए, जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब चाहिए मेरा। तो सर ने बोला नहीं तुम जॉब चला गया। मैं अभी इतना फ्रस्ट्रेशन में हूँ ना मैम, मैंने काम नहीं कुछ कर पाया मैं इस टाइम में। सर बोला जॉब छोड़ दी, मैंने जॉब छोड़ दिया और ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत कुछ किया, मेल भी किया सर को, रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो लोग नहीं ऑप्शन दिया मेरे को। मैंने इतना किया के लिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा मैम मेरे को जॉब। यही था मेरा, मैं इतना स्टेज में आगे भी नहीं, मैं समझ सकती हूँ। 70 किलोमीटर ट्रैवल करना आसान नहीं होता। मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा सोचो, बहुत मुश्किल होता है। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर आई कांट इमेजिन, बहुत ही मुश्किल है। बट बर्नाली, उसके बाद भी आप यहाँ बैठ करके हंस रहे हो, बात कर रहे हो, यू नो देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग एंड आई होप यू नो दैट यू सक्सीड। धर्मेंद्र ने भी अभी शेयर किया है कि यू नो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। मैं एक काम कर सकती हूँ, कई बार बात करने से दिल हल्का हो जाता है ना। तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि हर सैटरडे को कोई भी 2 स्टूडेंट्स अगर मुझसे बात करना चाहें, किसी चीज़ पे वो करना चाहें 15-15 मिनट के लिए, मैं वो हर सैटरडे कर सकती हूँ। मैं मुस्कान को बोलूँगी, वो बताएंगी कि कैसे करना है। ठीक है, और आप लोग आपस में कोई भी क्राइटेरिया सेट करके, परामर्श करके अपने एड्यूब्रिज के जो मैम हैं उनके साथ, मैं आप में से किसी भी 2 लोगों को, एज मेरी कोई हैसियत तो नहीं है मेंटर बनने की, पर मेंटर एक टर्म होता है इसीलिए यूज कर रही हूँ। ओके, कि कोई भी 2 लोग, ओके, जिनको लगता है कि मैं उनकी जर्नी आसान कर सकती हूँ बात करके, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके या गाइड करके, क्योंकि मैं बड़ी हूँ आप लोगों से। तो मैं आप में से किसी भी 2 लोगों को वो कर पाऊंगी, पर आप लोग देखिएगा आप कैसे वो सिलेक्शन करते हैं, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि EXL से भी और लोग आगे आकर के ऐसे यू नो करें। बट ये टाइम बहुत ही टफ है। इवन जो आपके एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया, ठीक है, मुझे पता नहीं कि जब वो ऐसा एक्शन लेते हैं वो अंदर से कितनी पीस पे होते हैं, क्योंकि किसी के साथ ऐसा करने में भी ना अंदर बहुत वो होता है। लेकिन उनको भी आप ब्लेस करो, क्योंकि उनकी क्या मजबूरी है, उन पे किसने प्रेशर डाला आपको पता नहीं, और वो कंपनी चल रही है, बैंकरप्ट हो गई वो भी नहीं पता। ये सर्कमस्टांसेस जो इस टाइम पे क्रिएट हुए हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, ये हमारी जो ह्यूमन रेस है उसका ये कलेक्टिव नेगेटिव करना है। इसमें हम जितना हंसेंगे, अपनी एनर्जी को जितना हाई रखेंगे और यू नो माफ करने की कोशिश करेंगे, यू नो आई थिंक चीजें बेटर होंगी। ओके, और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। ठीक है, मेरे को बड़ा बुरा लगा व्हाट एवर हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत। आई फेल्ट वेरी 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 बैड। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखेंगे। ओके ओके, यहाँ पे ना इस कॉल पे शैलेंद्र है, उन्होंने ना मैंने
कुछ बोला था, तो उन्होंने कुछ वर्ड बोला था, तो कहते हैं इससे ना मुझे एक एड याद आता है। मुझे ब्रांड तो नहीं पता, शायद कौन सी ब्रांड थी। डर के आगे जीत है, शायद है नहीं वो। माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू, हाँ, डर के आगे जीत है। हाँ हाँ ऋतिक जी, रोशन का ये था। हाँ आई नो। हाँ, और कुछ, हाँ जी बताओ। हाँ तो हेलो मैम, मैं हिमिका कोलकाता से। ओ वाओ। तो मैं कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ, पर ये बहुत ही छोटी सी बात है, आम बात जिसको कहते हैं, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे मैं बोलना चाहती हूँ। बोलो। तो मैं जब सेकेंडरी एग्जाम दे रही थी, तो मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था पहले से ही, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर इसके बाद नहीं जाती हिमिका, थी। तुम मुझे कॉम्प्लेक्स दे रही हो, मेरी नाना जी की बात याद दिला रही हो, ब्राइट स्टूडेंट कह के अपना। बट बताओ। हाँ तो मैं जब सेकेंडरी एग्जाम दिया था, तो उसके बाद जब रिजल्ट हाँ आया, जी। तो मेरा एग्जाम रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। मैं सेकंड डिवीजन गया था मेरे सेकेंडरी एग्जाम में। तो मेरा फैमिली जो है, मेरा जॉइंट फैमिली है, तो मेरा बाबा माँ, मेरा माँ, भाई बहन, मेरा अंकल आंट सब मुझसे बात करना बंद कर दिया था। इवेंचुअली मेरे ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडमा, वो सब भी मुझे एक घर में एक कमरे में बंद कर दिया था और कह रहा था जो तुम चाहो वो, जो मर्जी तुम चाहो, जो मर्जी तुम। आप कितने दिन के लिए बंद थी? आवाज नहीं आ रही आपकी अब। हाँ, जो चाहो वो करो। तो ठीक है। तो उसके बाद मेरी माँ आकर सिर्फ मुझे मेरा माँ आकर मुझे खाना देता था और फिर चला जाता था। और मेरे बाबा तो मुझसे बात ही नहीं करते थे, बहुत 2 साल मुझसे बात नहीं किया। तो जो होता है ना, इस नेवर, वो तो बोलते ही रहते हैं। तो वो आकर बोलते थे, अरे तुम्हारा बेटी ने सेकंड डिवीजन पाया है, मेरे बेटे ने तो फर्स्ट डिवीजन आया है, स्टार मार्क्स आया है उसका तो दो सब्जेक्ट में लेटर आया है, वगैरह वगैरह, 80% 90% ऐसे बोल के जाते थे। तो मैंने ठान लिया था कि एचएस में कुछ तो करना होगा, कुछ तो दिखाना होगा ही। तो मैंने सेकेंडरी में मेरा एग्जाम मार्क्स बुरा आने के बाद मैंने फैमिली से कहा था कि मुझे साइंस नहीं लेना। लेकिन पहले से ही मुझे मेरा ये था कि मैं साइंस ही लूंगा, एंड मैं लाइफ साइंस में कुछ तो करूंगा, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कुछ तो करूंगा। लेकिन नहीं, मार्क्स खराब आने के वजह से, मार्क्स बुरा आने के वजह से मैंने कहा ठीक है, तो आर्ट्स ही लूंगा, आर्ट्स लेकर ही पढ़ूंगा। तो मेरे बाबा ने जो जीत करके मुझे साइंस दे दिया। तो इसके बाद हायर सेकेंडरी में 2 साल पूरा 2 साल मैंने मेहनत किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत। मेरे घर से मैं पैदल जाता था 4.5 किलोमीटर मैं पैदल जाता था। जाके मैं ट्रेन पकड़ता था, ट्रेन पकड़ के यहाँ से मैं जाता था पूरा का पूरा वो 10:30 की 11 किलोमीटर मैं ट्रैवल करता था। मैं पढ़ाई करता था और फिर आता था, जब मैं स्टेशन में पहुंचता था, इधर मेरा जो स्टेशन है पहुंचता था, टाइम होता था 10:30 11। फिर वहां से मैं पैदल 4 किलोमीटर, मैं अकेली रात में 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर मैं पैदल आता था मेरे घर। कोई भी लेने नहीं जाता था, कोई भी कुछ नहीं था। वो विंटर हो, वो गर्मी हो, समर हो, पूरा का पूरा साल मैं 2 साल ऐसे ट्रेवल किया।
तो जब हायर सेकेंडरी हुआ, हायर सेकेंडरी में भी मेरे माँ बाबा इतना मेरे ऊपर गुस्सा थे, मुझे लेने नहीं गया, मुझे देने नहीं गया एग्जाम हॉल में, अकेला अकेला ही गई थी और अकेला अकेला ही एग्जाम दिया। तो जब फाइनली जब मेरा रिजल्ट हायर सेकेंडरी में एचएस रिजल्ट आया, तो मेरा एक सर था, उसका नाम विप्लव बागची, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत पसंद थे। तो वो फोन करके मुझे बोला कि हिमिका तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, बस इतना ही, अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूं। मैं तो घबरा गई थी, इतना मेहनत के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो अभी तो मेरे माँ बाबा तो घर पे नहीं रखेंगे, वो तो मुझे शादी वगैरह दे देंगे जरूर। तो वो पर उसकी कुछ देर बाद विप्लव सर ने मुझे फोन करके फिर से बोला कि नहीं हिमिका, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम रिजल्ट बहुत अच्छा आया, स्टार मार्क्स है, तो और हायर सेकेंडरी में तुम 2 सब्जेक्ट में लेटर भी लाए हो, तो डरने की कोई बात नहीं। और इतना भी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पूरा जो विलेज है, वो विलेज में पूरा एरिया में मैं टॉपर थी, मेरी ओह माय गॉड। यस। तो आज मैं बहुत मैं क्या कहूँ, मैं बहुत खुश थी उस टाइम, और मेरे बाबा सबको अभी भी दिख रही है। इनवाइट करके मटन खाया तो मटन, यस। हाँ, दुर्गा माँ को प्रसाद। आज आपने मुझे 2-3 चीजें याद दिला दी। पहला तो आपने कई बार बोला गई थी, गया था। मेरी एक दोस्त है प्रीतिका, अमेरिका में रहती है, बंगाली है, कोलकाता से। उनके भाई है प्रियांशु चैटर्जी, शायद आप जानते होंगे, आपके साइड के बहुत बड़े एक्टर हैं। यस हाँ, यस। हाँ। तो प्रियांशु और प्रीतिका जो दोनों हैं, वो गया था, वो गई थी, वो उनके ऐसे ही रहते थे, दोनों के ऐसे ही रहते थे। और अभी भी जब वो बात करती है, वो ऐसे ही करते हैं दोनों। और दूसरा जो आपने मुझे याद दिलाया, मेरी एक टीचर है, अंशुआ नाम है, वो मुझे म्यूजिक सिखाती है। वो मुझे रविंद्र म्यूजिक सिखाती है। एक सॉन्ग है, जैसी हो वैसी ही आ जाओ, रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो अभी मैं उनसे वो सीख रही थी कोरोना से पहले। वो भी बंगाली है, वो भी ऐसे ही बात करती हैं, और वो भी हमेशा बात करती हैं, आज मटन लेने जाना है, आज मुझे फिश बनानी है। तो उनका सारा एजेंडा जो है, उनकी लाइफ जो है। बट आपने बहुत इंस्पायर किया रियली हिमिका। मैं एक चीज जो आपने की है, मैं नहीं कर पाती। मैं अपनी विशेस के अगेंस्ट साइंस नहीं ले पाती, इसीलिए मैंने तो बहुत रिबेल करके आर्ट लिया था। लेकिन आपने जो मुझे इंस्पायर किया, वो ये किया है कि आपने कुछ अपनी विशेस के अगेंस्ट लिया, और जो चीज आपकी विशेस के अगेंस्ट होती है, वो आपके मन से नहीं होती, फिर भी आपने उसमें एक्सेल करके दिखाया। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग लेसन फॉर मी, मेरे से नहीं हो पाता। एक कोई और भी है जो शेयर करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने देखा था, कौन अभी चाह कॉल अंजरीला, या अंजरीला कुछ शेयर करना चाह रही थी। Hello, ma'am. Good afternoon. I am Indrila from Kolkata. सब कोलकाता से? मेरी बहुत दोस्त है कोलकाता में, और मैं कभी कोलकाता नहीं गई। मेरे फादर इन लॉ भी वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए थे, पर मैं जा नहीं पाई। हाँ। आप जब बात कर रही थी, तो आपने मासी के बारे में बात कर रही थी, तो तब मेरी मासी की याद आ गई। तो मेरी जो मासी थी, तो मैं उनसे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो मेरी मासी मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि तुम ये करो, वो करो, तुम पढ़ाई अच्छे से करो। मैं भी खूब बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, हमेशा 60%, 50%। We have in common. Yes, yes. Always मेरे मार्क्स ऑलवेज बिटवीन 50% to 65 की 70% रहते थे, उससे ज्यादा कभी भी नहीं गए। तो इसलिए पापा हमेशा गुस्सा होते थे मुझ पे कि और भी अच्छा करो रिजल्ट। पर मासी मेरे कभी भी कुछ नहीं बोलते थे, तुम जो कर रही हो पढ़ाई ठीक से करो, अच्छा होगा। तो जब मेरे ग्रेजुएशन के टाइम आया, मैं एंथ्रोपोलॉजी लेकर बीएससी कर रही थी,
तो अच्छा, यस एंथ्रोपोलॉजी हाँ बहुत कम लोग लेते हैं वैसे। हाँ तो हाँ तब ग्रेजुएशन के ठीक फाइनल ईयर के एग्जाम के 1 मंथ पहले ही मेरे मासी गुजर गई। ओह, तो मैं बहुत टूट गई थी उस टाइम पे। मेरा पढ़ाई में तो कोई ध्यान नहीं था कि मुझे मैंने मेरे लाइक मेरा आसमान चला गया। इट्स लाइक मेरा आसमान चला नहीं, गया। मैं समझ सकती हूँ, मैं ऐसे कुछ लोगों को खो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, आई कैन तो अंडरस्टैंड। मेरा मासी का लंग्स कैंसर हुआ था, तो करीब 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो फिर मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ, मैंने कैसे क्या बोलूँ मैं तो बहुत कोशिश की पढ़ाई करने की। मेरे पापा तो मेरे साथ हमेशा थे उस टाइम पे। बोला कि तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, मैं तुम्हारा फाइनल ईयर का एग्जाम आ रहा है। तो मैं फाइनल ईयर एग्जाम दी, बट मैं फर्स्ट क्लास नहीं कर पाई। मेरा 55% में अटक गई नंबर। तो ठीक है, तो मेरे पापा बोला जे तुम अगर पढ़ाई और करना चाहते हो तो करो। तो मैं फिर एमएससी में एडमिट ली। मेरे घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था मेरा यूनिवर्सिटी मिदनापुर में। माय गॉड। ये हाँ, तो जब मैं एडमिशन ली थी एमएससी में, तब मेरे पापा के पैर में करीब 30 साल पहले एक बर्निंग केस हुआ था। तो बर्निंग केस। हाँ, तो उस टाइम में मेरे पापा को एक वहाँ पैर में सडनली एक क्या बोलते हैं वो शॉर्ट टाइपर हुआ। तो उससे पापा का पैर मेडिकेशन चल रहा था। तो डॉक्टर ने पापा को बोला कि फुल रेस्ट लेने के लिए, बेड रेस्ट घर पे। तो मेरे साथ मैं तो जाऊंगी एडमिशन लेने मेरे यूनिवर्सिटी में। तो पापा ही एक थे मेरे गार्जियन कि मुझे ले जाए, मुझे एडमिशन कर दे। पर उस टाइम में मैं पापा नहीं जा सके। मैं अकेली गई मेरे कजिन को लेकर। वो ही गार्जियन के साइन पे मैंने गार्जियन की जगह वो साइन कर दी, एडमिशन ली मैंने। तो फिर उस टाइम पे मेरा जो बॉयफ्रेंड था उससे मेरा शादी फिक्स्ड हुआ। तो मेरा जब शादी का डेट था 2 दिसंबर 2018। फिर ठीक है, शादी तो फिक्स्ड हुआ, सब अरेंज हो रहा था शादी के लिए। तो फिर मेरे मास्टर्स की फर्स्ट सेमिस्टर की फाइनल एग्जाम हुआ 10 दिसंबर। मेरा अच्छा, हाँ, मेरा शादी था 2 दिसंबर और मेरी मास्टर्स की फाइनल एग्जाम थी 10 दिसंबर। तो मैं अब लाइक इनविटेशन सब हो गया, सब कुछ हो गया अरेंज। तो अब कैसे कैंसिल करें शादी। और मेरी जो इंटरनल असेसमेंट था वो था लाइक 30 नवंबर तक 2018। तो मैं एग्जाम देकर मैं 1 दिसंबर में घर आई। मेरी वो जो शादी के जो रस्म सब होते हैं सब हुआ। देन मैं 2 दिसंबर और से 4 दिसंबर तक मेरी जो सब शादी का जो रिचुअल्स होता है बंगाली का सब हुआ। देन मैं 4 दिसंबर ही मैंने 5 दिसंबर को मैं फिर से मैं वापस घर आई। तो अच्छा। वो मेरे वो जो रिलेटिव्स थे, वो जो नेबर्स थे, सब कि वो जो फ्रेंड्स थे, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो तो मुझे कहने लगे तो क्यों मास्टर्स डिग्री कर रहा है तू, तेरे से कुछ नहीं होगा। तू शादी कर रहा है, शादी करके तू लाइक हाउस वाइफ होके तू बैठ जाएगी घर पे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, जस्ट तो बिल्कुल। अब जब एमएससी हो गया है, जस्ट रिसेंटली मैंने करीब 1 वीक पहले मैंने मेरी मास्टर्स की फाइनल ईयर एग्जाम कंप्लीट की। तो अभी तक तो कोरोना वायरस के लिए रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अब कब निकालेगा हमें नहीं पता। तो अब मुझे फ्रेंड कह रहा है कि अब मैं ये जो ट्रेनिंग ले रही हूँ BA-PSI की, सब कहते हैं तुम तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट हो, तुम तो बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, तुम कैसे बैंकिंग के बारे में पढ़ सकती हो, तुम बैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है, जब टाइम आएगा तब आप देखना। मैं भी नहीं जानती मैं कितनी दूर जा सकती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं 100% अपना काम दूंगी। अगर मैं फ्यूचर में एक जगह गई तो आप लोग ही देख लेना, अगर नहीं गई तो वो मेरा लक है। नहीं नहीं एंड्रिला, आप पक्का जाओगे, आप मेरे ही देख लो, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आप लेकिन
हाँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैंकिंग सीख रहे हो हाँ और घर में भी बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है, जो वो वो करे। कल को अगर आपके हस्बैंड घर देखना चाहे, आप बाहर का काम कर रहे हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस अब ये दायरे हमारे दिमाग में होते हैं, ठीक है, कि जिसने एंथ्रोपोलॉजी की है वो बैंकिंग नहीं कर हाँ हाँ सकता। यू नो मैंने भी क्या कहते हैं साइकोलॉजी की थी। मेरे एमबीए में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स था पूरा। मुझे तो लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, कंपनी में जग हसाई होगी, पूरी कंपनी में बोलेंगे इनको भेजा था स्पॉन्सर करके, ये फेल हो गया। बट किया। अब सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, बट यू बस विल गो। हमेशा लिखना चाहिए। हाँ। ठीक है। एब्सोल्युटली। और सब देखो, और भी कोई है जो शेयर करना चाहता है? अब मेरे पास टाइम है, हाँ, मुझे पता नहीं कितने घंटे की थी, बट मेरे को, क्योंकि आई एम लर्निंग अ लॉट, तो अगर आप ये मत सोचिएगा कि मुझे जाना है तो कोई शेयर नहीं करेगा। मेरे ख्याल से सैनिका वांट्स टू शेयर समथिंग मैम गुड एंड आफ्टरनून टेल मैम। मी। गुड आफ्टरनून सैनिका। मैम मैं आपने बोला था ना अपना स्पीच में कि जब कोई और का बच्चा का मुख में जो स्माइल आती है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है खुद की मन के लिए। तो एक आफ्टरनून में मैं क्लास जा रहा था, तो तब मैं जब जा रहा था दूर में देखा तो एक बहुत ही पुअर था, उसका माँ उसको गोद में लेकर वहां पर खड़ी था। तो एक उसका कोल में जो बच्चा था, तो वो बच्चा बोल नहीं सकता था, वो मेनली बोलने वो हैंडीकैप टाइप का था। तो वो जो सामने भुट्टा भुट्टा होता है ना, भुट्टा की जो मुझे दुकान बहुत अच्छा लगता है। उबला वाला कि नींबू वाला? तो नींबू वाला। उस सभी मिलता है वहाँ पर। तो वो खाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके माँ के पास इतना भी ज्यादा पैसा भी नहीं था कि उसको डॉक्टर दिखाए, और मैं भी ज्यादा पैसा भी नहीं लेकर निकला था। तो मैंने सोचा दूर जब आ रही थी तो मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं वापस फिर से रूम में आ सकती हूँ और पैसे लेकर फिर जा सकती हूँ, लेकिन उसको जो खाना था वो तो बच्चा है ना, उन्होंने नहीं समझ सकती, तो उसको देना चाहिए पहले। तो मैंने तो उसका माँ उसको लेकर चला चला जा रहा था दुकान के सामने से। तो मैंने बोला कि रुकिए थोड़ा सा। तो मैं दादा से बोला जो दुकानदार था, तो मैंने बोला कितना का, वो बोला कि 20 रुपए का है। तो मैंने बोला कि ठीक है एक दे दीजिए। तो उसका माँ पहले समझ नहीं सके कि क्या हो रहा है। फिर उसकी जो माने जो चाइल्ड था उसके हाथ में जब वो भुट्टा दिया तो वो इतना ज्यादा स्माइल कर रहा था ना, तখন मुझको लगा कि दुनिया की सारे खुशी मतलब मेरे हाथ से ही हो रहा था। तो उसका माँ बोला कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, ये सारी बात बोलकर उस चला गया। तब मैं फिर से वापस आई और फिर से पैसे लेकर फिर से मैं क्लास के लिए लेट हो गया था। बट टीचर ने भी मुझे डांटा था, बट ठीक है चलेगा, जब इतना खुशी किसी टाइम पे मिलता है तो डांट भी चलेगा। हाँ, दैट नहीं, वाज ये बेस्ट। वेरी वेरी ट्रू। मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है उस पिक्चर की, कभी आप देखिएगा, घर से है दूर मस्जिद, चलो ऐसा कर ले। जो जो वर्शिप की प्लेस है वो घर से दूर है, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया बहुत अच्छा लगता जाए। थैंक यू, है। वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम। हाँ, किसी और भी, धर्मेंद्र और तुषार भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। बताएं। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे धर्मेंद्र। ठीक है मैम। क्या हुआ, 10th क्लास के बाद मेरा क्या 10th में टॉपर, एक बार टॉप हो जाने के बाद गांव में हो जाने के बाद क्या होता है कि भाई आपने अपना टॉप पसंदीदा सब्जेक्ट दिया जाता है। मेरे क्या घर वाले पता नहीं मेरे इंटरेस्ट। आपने टॉप किया था? आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। आपने 10th में टॉप किया था? हेलो मैम। हाँ हाँ आ रही है धर्मेंद्र, आ रही है आवाज। हाँ मैम, क्या हुआ 10th में टॉप कर जाने के बाद क्या गांव में टॉप किया था। तो उसके बाद क्या मेरा इंटरेस्ट था मेडिकल साइंस लाइन में जाने का। तो मेरा बायोलॉजी लेना था 11th में, क्योंकि यही एक स्टेज होता है जिसमें अपना कैरियर जो बनाना चाहते हो फाइनल,
तो वो वहाँ से चूज कर सकते हो, या कॉमर्स वगैरह जो भी। मेरा बायोलॉजी था। पापा को कोई पता नहीं, पापा किसी टीचर के कांटेक्ट में आए, बोला, वो टीचर बोला मेरा बेटी इंजीनियर है, तुम भी अपने बच्चे को मैथ्स दिला दो। अब जबरदस्ती था, मतलब मेरा ऐसा नहीं है मैथ्स 10th में 100 आउट ऑफ 100 आ रखे थे, बोर्ड एग्जाम में टॉप करा था, अच्छे मार्क्स, वो दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मेडिकल का था, लेकिन फिर भी अब घर वाले थे, दे दिया तो ले लिया। मेडिकल 7th में मार्क्स कम बने, फिर भी 12th में भी कम ही बने। फिर मेरा था कि भी मैं ये छोड़ बैंकिंग लाइन में जाना चाहता था, मतलब 12th के बाद छोड़ करके। 12th तक जो था सो हो गया, सो तो मैं क्योंकि उस टाइम 12th पे बेसिस पे एक गवर्नमेंट एग्जाम होते थे बैंक के, तो फिर भी उसमें घर वाले नहीं माने। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग के लिए मैंने ये स्टेट लेवल दिया और अच्छा कर गया, मतलब एग्जाम क्रैक करके मुझे अच्छी कॉलेज भी करा 2015 में। तो फिर भी मैं मतलब संतुष्ट नहीं था। बीटेक करने के बाद अच्छा परसेंटेज बना, 70% था, और कोई बिना किसी मतलब बेक के, तो मैं अच्छा सब कुछ अच्छा कर रहा था। फिर भी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बीटेक के बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब करना चाह रहा था। फिर 1 साल के लिए घर वालों के प्रेशर की वजह से जॉब भी की मैंने, फिर जॉब की, लेकिन मुझे कोई मतलब मजा नहीं आया। फिर मैंने वापस छोड़ दी 2017 के बाद, मैंने जॉब छोड़ दी। वो 2017 के बाद आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, जॉब छोड़ दी। हाँ मैम। अच्छा। फिर एक सेकंड में वो फिर मैंने वापस से किसी के मतलब रेफरेंस, मतलब कहीं भी जॉब प्राइवेट मांगने जाते हो तो वापस रेफरेंस लगाओ, वो लगाओ। फिर मैंने ये सब झंझट छोड़ दिया। घर वाले बहुत रेफरेंस लगाते हैं, मैंने जाना ही छोड़ दिया इंटरव्यू देने। मैं सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहता, इसलिए बैंकिंग की कोचिंग वगैरह स्टार्ट की। 2017 में मेरा एक भी प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। 2018 में मैंने जब एग्जाम दिया बैंक के, तो लगभग 3-4 एग्जाम प्री क्लियर हुए, मेंस में आउट हो गया ज़रा। 2019 में फिर मैंने सारे प्री एग्जाम क्लियर किए, यहाँ तक कि प्री मेंस दोनों क्लियर किए। मैक्सिमम एग्जाम में प्री मेंस और टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद वो भी क्लियर किया। लेकिन फाइनल लिस्ट जो बनती है उसमें मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अभी मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ अभी। हाँ, अब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो गेस्ट घर पे आते हैं बोलते अभी भी तुम्हारा लड़का घर बैठा है। अब उनको कौन समझाए कि घर पे बैठा हूँ नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ, वो तुम्हें नहीं पता। लेकिन अब क्या होता है, उसी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि हाँ सच में उनका बेटा, वो बोलते मेरा बच्चा अभी 30,000-40,000 रुपए मन कमा रहा है, तुम्हारा बेटा घर पे बैठा है, वो चीजें मतलब उससे मतलब थोड़ा डिमोटिवेट होता था वो, मतलब मेरा मोरल भी लो होने लगता था कई बार। बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट करता है। लेकिन अपने आप को दूसरे क्या कहते हैं उससे जज मत किया करो। है ना? दूसरे क्या कहते हैं उससे अपने आप को जज मत किया करो। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। हाँ, अभी क्या एसबीआई का पूरा फोकस बना रखा है। एसबीआई तो मेरी अच्छा जनवरी में लेके आई थी, तो ये अच्छा मुझे हो जाएगा। रिजल्ट नहीं दिखी आई कोविड-19 की वजह से, और उसका मेन होने वाला 19 अप्रैल को। बट इस महामारी की वजह आगे अब पता नहीं, अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर मैं मतलब और लो हो रहा है क्योंकि दिनों दिन में घर बैठा हूँ। नहीं आप अभी आपकी एज ही क्या है, आपको लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो भी करते हो ना, बस उसको बेस्ट करने की कोशिश करो जितना आपसे हो सकता है। और दूसरे क्या कहते हैं आप मत सोचो, क्योंकि हो सकता है दूसरों के बच्चों की नौकरी लग गई हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आपको क्या पता कि उनको पास उतनी सपोर्ट है कि नहीं है जितनी आपके पेरेंट्स की आपके पास है। हर किसी की लाइफ में कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, टाइम की बात है। लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को मत खोना प्लीज। मैम यही कोशिश करता हूँ बहुत बार, लेकिन क्या होता है जब ज्यादा ही प्रेशर होता है तो उस डिमोटिवेट होता हूँ। फिर कुछ मैं मोटिवेशन वीडियो भी देता हूँ। किसी चीज पे बिलीव करते हो? किसी चीज में बिलीव करते हो? किसी चीज में बिलीव करते हो? हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ किसी चीज में बिलीव करते हो? किसी भगवान में, किसी चीज में बिलीव करते हो? हाँ मैम।
तो गणेश जी जब भी ऐसा वक्त आया करे, आप 10 मिनट बैठ करके बस ध्यान कर लिया करो। और एक मैं आपकी जो मैं आपको एक वीडियो सीरीज का वो बताती हूँ लिंक। इट इज माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, ये मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जहाँ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, जो जहाँ पे लोगों ने असंभव करके दिखाया है। ओके, और मैं बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ, सोका गक्का इंटरनेशनल, उसमें बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आते हैं। ओके, आप वो फॉलो करो या ना करो, मुझे नहीं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको मेरे को उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस निकाल करके जरूर ईमेल करूंगी। ठीक है, ठीक है। आप आवाज में ब्रेक हो रही है, कुछ सही नहीं है। आपकी तरफ मुझे लग रहा है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है धर्मेंद्र। पर मैं आपको बहुत एक्सपीरियंसेस भेजूंगी। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, टेक केयर। All right. Who's going next? Hello, ma'am. Hello. 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 Hi, Dipashri. How are you? Yes, ma'am. I'm fine, ma'am. How are you? Good, thank you. हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? Actually, ma'am, मैं एक बात शेयर करनी चाहती हूँ। मेरी वो वीकनेस भी कह सकते हैं आप। तो वो जो है, मैं बचपन से ही डरती हूँ कोई बात को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब मैं बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं करना पाती हूँ। तो स्कूल में जब सारे बच्चों को कहा जाता है कि तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि टीचर बनूंगा। तो मैं वो नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं कोई बात एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी और नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं एक स्किल सेक्टर में ज्वाइन की। तो स्किल सेक्टर में जब ज्वाइन की, तो मैम मैं पहले वो फील्ड मोबिलाइजर की तरह ज्वाइन की। तो मैं टेलीफोनिक बात करती थी वहाँ पे। पहले जो मैं टेलीफोनिक बात करती थी जो सारे स्टूडेंट्स हैं उसके साथ, तो मैं बहुत डरती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन हुए, देन काउंसिलर हुई मैम। तो उसके बाद फेस टू फेस बात करती थी स्टूडेंट के साथ जब फेस टू फेस बात करती थी पहले, तो तब भी मैं डरती थी। अभी भी मैं डरा हूँ आपके साथ बात करने में। तो स्टूडेंट के साथ जब बात करती थी तब डरी हुई थी। तो उसके बाद एक्सपीरियंस जब बढ़ती गई तो वो कैजुअल हो गया। अभी 6 महीने पहले वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की तरह मैं ज्वाइन की, फिर से प्रमोशन हुई। तो उसके साथ साथ मुझे वो क्लाइंट से भी बात करना पड़ता था कि जो सारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट को भेजना पड़ता था, वो सारे क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती थी। तो पहले तो मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, वो मेरे जो सीनियर है उससे बात करवाती थी। तो उसके साथ साथ अभी मैं ही सीनियर एग्जीक्यूटिव बनी हूँ कुछ देर पहले। उसके बाद ही मैं जॉब छोड़ दी। तो मैं ये रियलाइज किया है कि अगर कोई चीज को मतलब डर हो, तो वो चीज अगर आप अच्छे से करो या फिर डर के पहले सीखो, तो कुछ देर बाद या फिर कुछ दिन बाद वो कैजुअल हो जाते हैं। तो यही रियलाइज की हूँ मैम। तो यही शेयर करनी चाहती हूँ। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दीपांशी, बिकॉज मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे साथ कोई
बात करता है ना और वो ठीक से नहीं करता और वो अगली कॉन्वर्सेशन होता है, तो मेरा पॉइंट ठीक भी हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ, और इसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं सामना नहीं कर पाती किसी भी अ, कोई अगर जोर से चीख करके बात करे, और मैंने पहली बार जिंदगी में अभी पिछले साल एक बार ही किसी को जाकर के समझाया कि आपने मेरे साथ ये चीजें ठीक नहीं की, ठीक है। और मुझे इतना रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि मैं कभी भी खुल करके ये नहीं बोल सकती कि आप गलत हो, ठीक है। तो मुझे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डर का सामना, और जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी उसके बाद मेरे को अपने एमबीए के लिए कभी सिंगापुर, कभी यूएस, कभी शिकागो, कभी लंदन जाना होता था, और मेरे से प्लेन में पैर रखते ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि एक दिन तो सभी को जाना है, मैं जो भी मोमेंट जीऊंगी वो मैं खुल के और खुश रह करके जीऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो प्लेन में पैर रखना बहुत ही ट्रॉमेटिक था। लेकिन अगर उसको स्टॉप कर देती ना, मैं अभी कहीं नहीं जा पाती, कहीं नहीं जा पाती, और वो डर शायद मैं अपने बच्चे में भी पास कर दूंगी। तो Yes, ma'am. आई एम ग्लैड यू डिड दिस। या एंड अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो लेसन्स बढ़ते जाएंगे, कंटिन्यू टू रिविजिट देम, and difficult times will teach you better lessons, but I hope you don't have difficult times much. Okay. Yeah. Next we have Tushar speaking. Hello. Hi Tushar. Hi, ma'am. How are you? I'm good. Where are you from, Tushar? I'm Salon ke. हाँ सारुण मैम आई एम Salon फ्रॉम ke. मुंबई महाराष्ट्र। Yeah. मेरे को लगा अभी एक और कोलकाता से तो नहीं है। नो मैम। हाँ। तो जो ये बात है कि ये 2018 की है कि मैं बी मैकेनिकल कर रहा था फाइनल ईयर, एंड मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे अराउंड अप्रैल मई अप्रैल 30 को मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। तो मैं मुंबई से दूर सातारा में कंप्लीट कर रहा था बी मैकेनिकल। सतारा में एक फैक्ट्री भी है ना बहुत बड़ी स्टील की, कूपर। यस हाँ कूपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस। तो मैं 2018 में कर रहा था तब मेरे मामा जी का फोन आया था कि हमने बहन, जो मेरी बहन है, सिस्टर, यंगेस्ट एल्डर सिस्टर, तो उसकी शादी तय हो गई है। तो मुझे शौक लगा कि अब तो मेरी एग्ज़ाम है, 10 दिन में चालू होगी एग्ज़ाम, और तो शादी भी है, उसकी डेट भी आ गई है, 3 दिन में शादी भी होने वाली है, तो कैसे अरेंज कर पाएंगे। तब उन्होंने फ़ोन पे कहा कि तुझे क्या करना है, हम सब देख लेंगे, तू सिर्फ शादी के लिए आ जा, शादी अटेंड कर और निकल जा, बाकी हम संभाल लेंगे, कि अरेंजमेंट वगैरह मैं सब देख लूँगा उसको, मतलब तुझे उसकी टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हॉस्टल पे रहता हूँ, 4 साल से दूर हूँ, और मैं आऊँगा और बहन चली जाएगी अभी। तो फिर भी उन्होंने मुझे फोर्स करके मना लिया। तो वो शादी थी 30 को, मेरी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में 3 को चालू होने वाली थी, और शायद उस डेट थी 21 अप्रैल। तो 10 दिन शादी को और 13 डेज एग्ज़ाम को पेंडिंग थे। तो 10 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि बहन ने ही फ़ोन किया, और उसने कहा कि मामा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहे। तो मुझे एकदम शौक लगा। तो मैं भी दूर था तो वहाँ से 300 किलोमीटर कुछ है। तो मुझे पहले तो शौक लगा कि मतलब वो एकदम अच्छे थे कि मोटिवेट करना, बार बार फ़ोन करना, सपोर्ट करना। तो घर में सबसे बड़े और डिसीजन मेकिंग वो करने वाले वही थे, हमारे तीनों फैमिली, मतलब मेरी फैमिली, नाना नानी, सबके लिए वही सपोर्ट थे। और वो बहुत बड़े पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर थे, एजुकेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, सब अच्छा था। मतलब एक लीड पर्सन होता है किसी भी फैमिली का, कि कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, सब वो अरेंज करते। तो मुझे एकदम शौक लगा कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उस दिन मैं फिर वापस मुंबई को आया 21 को। तो वो सब देख के मैं और शौक हो गया कि कोई भी किस हालत में नहीं थे, क्योंकि एकदम उनकी एज भी इतनी नहीं थी, हार्डली 37 एज थी। और
तो वो सब हो गया। तो फिर पापा ने मुझे पूछा कि अभी क्या करना है, कि कार्ड तो पड़ गए सब, शादी की अरेंजमेंट हो गई है सब, तो क्या कर सकते अब हम। तो मैंने तब थोड़ा सोचा कि अगर मामा होते तो क्या होता, कि उन्होंने मुझे आज तक क्या सिखाया है कि कोई भी सिचुएशन हो खड़ा होना चाहिए। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी जगह मुझे अब लेनी चाहिए, कि अगर यही बात अगर मेरे बारे में होते तो वो थोड़ी रोते फिरते कि उन्होंने कुछ किया होता आगे आगे। तो वो सबसे बड़ा एक लेसन है लाइफ ने जो मुझे दिया है, कि सिचुएशन कोई भी कैसी भी होने दो, कि हमें वे ऑफ थिंकिंग उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अब सबसे बड़ा तो मैं हूँ घर में, उनके बाद तो मैं उठाऊंगा ये सब। तो उसके बाद मेरी एग्ज़ाम थी, फिर भी मैंने सब अरेंजमेंट किया, उसकी शादी बहन की और उसके साथ जस्ट 30 को शादी हो गई। तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने के लिए चला गया 3 दिन बाद। तो अ, तो यह है कि सब जन बोल रहे थे कि नहीं अभी कैंसिल करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं ये। पर मुझे पता था कि हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हॉल के लिए सब दे दिया है, सब हो गया। तो ये भी सोचा, और ये भी सोचा कि नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ही करना चाहिए अब। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए भी मैं प्रिपेयर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बैक ऑफ माइंड चालू होता है कि हम पढ़ने के लिए बैठते तो सब याद आता है। फिर भी मैंने हाँ कि सोचा कि नहीं, ये जो 10 दिन है एग्ज़ाम के, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, रोना धोना बाद में सब चलता रहेगा, लेकिन अब भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं, बहुत जरूरी है। और आपने ना मुझे आज मेरे मामा की याद दिला दी। मेरे मामा की डेथ हुई थी जब वो 32 साल के थे। हाँ 32-35 साल के थे। मेरी मदर की डेथ हुई थी जब वो 32 ईयर्स की थी। तो मेरे मामा की डेथ भी एक्सीडेंट से हुई थी। नैनीताल में उनकी गाड़ी गिर गई थी, और वही थे जो मुझे पाल रहे थे मेरे नाना नानी के साथ। तो मैंने भी कुछ ऐसा किया था कि मैंने अपनी जो मेरी बहन है आभा, उनके जाने के बाद मैंने कहा ये तो छोटी बच्ची है, इसको खुशियाँ देनी ज़रूरी है। तो मैंने उसका पूरा बर्थडे, मैं भी छोटी ही थी उस टाइम पे, पूरा बर्थडे सारा खाना बना के उसके फ्रेंड्स को बुला के सेलिब्रेट किया था। ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान ने आपको ये प्रॉमिस करके भेजा है कि ज़िंदगी दे रहे हैं तो प्रॉब्लम तो देंगे ही। तो हमारे बुद्धिज्म में एक सेइंग है, सफर व्हाट इज देयर टू सफर, एंजॉय व्हाट इज देयर टू एंजॉय। क्योंकि आपकी सफरिंग जो है वो लिखी हुई है, वो नहीं जाएगी, आपका जॉय भी नहीं जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि उस सफरिंग को आप बेटर कैसे बना सकते हो। क्योंकि आपके मामा चले गए, लेकिन आपने एक आदर्श सेट कर दिया अपनी फैमिली के लिए कि वो चले गए हैं, लेकिन आप अपनी मेंटल शक्ति से अपने आप को एज अ फैमिली लीडर स्टैब्लिश कर रहे हो, चाहे आप छोटे भी हो। सोचना कभी इसके बारे में, है ना? ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। ओके, वेलकम। और कोई है? We have Eliza. Hello. Hello, Lisa. Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I just wanted to share one thing. मतलब मैं बचपन से I have been a rebellious child. Like whatever I wanted, I just wanted my father to give me. And Ditto. किधर मॉल के लिए तो मतलब मैं वहाँ पे बैठ जाती थी नीचे कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे देना ही चाहिए. He had no option, then he had to give me. तो फिर वैसे सब एलाइजा, चलता एक था, मिनट सब रुको ठीक था. यहाँ पे, एक मिनट रुको यहाँ पे। तुमने जब मेरा सन ना बहुत लेट हुआ, व्हेन आई वाज अराउंड 37 इयर्स ऑफ एज, और मैं उससे पहले जब दूसरों के बच्चों को देखती थी ना मॉल में पैर वैर फेंकते हुए, रोते हुए, मैं कहती थी मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि वो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, बच्चे ऐसे ही होते हैं, एंड दे कैन एम्बैरस यू। तो मैं इधर उधर देखने लगती हूँ जब वो ऐसे करता है। बोलो। तो फिर वैसे सब चलते एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. कभी मतलब 70 तक ही मेरे परसेंटेज आए, लेकिन मेरे पापा ने कभी कुछ बोला नहीं, बट ही ऑलवेज वांटेड मी टू स्कोर गुड इन माय एसएससी. तो फिर मैंने फिर भी बोला कि मैं करूंगी, एंड आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड. मतलब आई न्यू आई वुड पास, बट आई नेवर वांटेड 80% और 90%. So I was okay with my percentage. Then after that, I scored 67, and I actually went to my friend's place to see my result. And then she doesn't have a mother,
So she used to stay with her grandmother and her father. So when we saw our result, my percent was 67 and she got 63 or something. When her father and her grandmother saw her result, they were so happy that they immediately gave her money and asked her to go and bring sweets and everything. So they were so happy. They hugged her and they said, "Oh my God, itna acha kiya वगैरह." So even I was expecting the same thing from my parents, but then I came happily that I at least passed from first class में तो pass तो हुई मैं. तो मैं घर पे आई and I told my mother. My father was there at home. He was just sitting like that only. Then after that I told him and he said, "What happened?" Then I told him I got 67%. I got more than Anushka. My friend's name is Anushka. So I got more than her. He said only 67, and then he was so sad and he was like, only 67. He just Oh. said that. And I was very sad. I was very depressed because my father was someone who was very close to me. My mother shouts at me, I don't care. But if my father shouts at me, I am depressed and I'm sad. And I've always been a daddy's girl. So I didn't want that reaction on him what he gave me. He could have at least said it's okay, it's fine, but then he didn't say that. And my mother was also supporting my father. Even she didn't say anything. So till 1 week I was very sad and I was in I can depression. imagine. Yeah, and I was in depression and I thought I did so much and at least I got first class. Then why didn't they, my friend, she got less than me, but still her grandmother and her father, gave her money, went to bring sweets. मेरे घर पे sweets नहीं लेके आए थे. तो मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा था क्योंकि I was expecting the same thing. So, but I was very sad, and then I still thought it's okay. But then I used to cry every day while sleeping, and I used to think I Hmm. want suicide and all. So I used to think about Hmm. all that. Then it was a very hard stage because I was just in 10th standard, so it was very difficult for me. And after that, but then I thought I will do more hard work. I will study more for my 12th standard, and I will make my father proud. But still, what he said, he asked me to take commerce. And I told him, no, I cannot study maths because I never liked maths. I was very, weak in maths, so I didn't want to do that. But he forced me, and I was the only one who went for my admission and everything. I did everything because he didn't help me and all. So I knew I wanted to take arts, and I will only pass if I take arts. If I take commerce, it's going to be a hell lot of difficult stage for me, and I cannot do anything related to maths. So I did my own admission. I took arts and I told him I took arts then. But he said, no, no, how you took arts? My friends are shouting at me. How did you? He's always been influenced with his friends. Whatever his friends used to tell him, he used to come and tell me, do this. They are telling this is good. They are telling because he's actually a police. So you can understand. See his friends have been telling him what is good and he tells us. So it is a very difficult thing for us to handle him sometimes. So then, but still, I told him I am okay with arts. I want to do this. I did arts, and I used to always, how much of marks I used to get in my class. I was the top. Even if I got, Wow. yeah, how much ever it was, I used to be top. And all my teachers knew my name. I used to do everything the teachers asked, and they used to always be like, Eliza, okay, you are there. Now they also made me the captain of the class and everything. So I did my 12th, and in my 12th standard, when I was studying for my boards, I had 4 books for one subject. So I had Wow. six. My God. Yeah, I made so many notes, and I had all these, matlab, everything in properly. I studied everything, and my father saw me that I used to study till 1 o'clock, 12 o'clock in the night, and so he knew that I am trying my best. I am doing it. Like in 10th standard, I used to not study that much, but now I did, and I was expecting more than 70 this time, but unfortunately I don't know what happened. I just got 69, which was 1% less than 70. Yeah. So It's but he 70. yeah, but he didn't say anything. He knew I because he used to see me studying till 2 o'clock. He saw your commitment. Yeah. Yeah, so, But and I've always been determined that if I want to do this, then I will do it, and if I will make him proud and all. So he was okay. He never said anything to me because he saw that I was studying and I was struggling and everything. So I did all that, and I somewhere maybe in his mind, I don't know what he's thinking in his heart or whatever he's thinking about me, but I know that somewhere he also must have thought that okay, she has done this, and maybe somewhere he must be proud of me. Even now, I don't know what he's thinking about me, but somewhere he yet knows that I will do whatever I am determined. Because there was a psychic who told him that your daughter is very determined to whatever she does, and yet now also whatever I want, like I just think that I want this and I do it.
So even last year also, I started working. I started doing events and everything. Like you told, you also mentioned that you used to go for conference events, like right. So even I started events like that. I started earning my pocket money. He doesn't know anything yet. He doesn't know that I used to earn my pocket money. Last year Yeah. I used to work for a real estate telecalling. So I did that. I earned 24,000 per month, but he still doesn't know that. But what I wanted was, I wanted that to earn to give gifts to my mother, like to show her that I am there. You don't have to worry. Now this year, my father is retired in last month, so I just want to financially help him and all. So yet he's telling me to give MPSC exam and all, but I cannot do that. He knows, but still he thinks that I can still give the exam and I can still pass. But I know I cannot do that much, because that study, you know, right, how much concentration you need. 18 hours, 20 hours a day you have to study, and you have to give that much time. But I have some different plans in my mind, so I want to make him proud, and I know what I want to do. But I want him to have some faith in me, like I will do it, and I will definitely make him proud someday by settling properly in my life and earning whatever he has been thinking for me, you know, earning a proper income where I am satisfied and I make them satisfied as my family. So that is what I wanted to say. No, Eliza, that's very nice. One, your determination, and that is very important. Ma'am, You I know, can't because hear you. can you hear me now? Yes, ma'am. What I'm saying is that one, determination is very important, because otherwise you could not have made him proud, you know, so 69%. Then secondly, marks are they indicate, you know, to a certain extent how much you have worked hard, and sometimes, you know, your intelligence. But I think intelligence भी नहीं, क्योंकि कोई आदमी किसी एरिया में ज्यादा अच्छा करता है, कोई आदमी किसी एरिया में ज्यादा अच्छा करता है. The third thing that is very very important is for you to know कि जो parents होते हैं ना, वो एक तो अपने बच्चों का हमेशा बेस्ट चाहते हैं, और दूसरा अनकॉन्शियसली उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी लाइफ की एस्पिरेशंस अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, यू नो, या फिर उन पे जो सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं वो अपने बच्चों तक वो लेकर के आते हैं अननोइंगली. सो योर फादर हैज नॉट रियलाइज्ड इट. maybe you know what I and जैसे कि आपने कहा, आपने अर्न करना शुरू किया. मैंने भी अपनी पहली सैलरी अपनी नानी को दी थी और उनको कहा था आपको जिसके लिए जो लेना है आप लीजिएगा, ठीक है. तो you know, so I think you need to have a coffee with your father. You should take him out and you should tell him that Papa, I hope you are proud of me. You don't have to worry about me, and I am there for you. I am happy. What should matter to you is that I'm happy. Yeah. Okay, and you look happy alive, Lisa. I want to take him out. I will, but only then when I get a proper job and I'm proper settled. So I just want to ask him one question. Are you proud of me now when I have done everything, whatever you have been Yeah, but you should not overjudge yourself कि अगर marks 1% कम आया है तो you know it doesn't matter. You know, you should be able to shine and be happy. That should be your benchmark. Not be unhappy in a subject or something. And एक मूवी है वो जरूर देखना, हैप्पी गिलमोर, if you ever get a chance. Okay, this guy tries to do all sports but ultimately वो बेसबॉल खेलता है तो वो सक्सीड करता है क्योंकि वो उसका पैशन है. Right. Yeah. Okay. Thank you. Welcome. All right. So- Thank you everyone for coming up with the questions. Any more questions? Anything you all want to share? I have one last lines to share, Tessie. Yes, Manishi. Okay, so before we end, I want to share this with you, and this is from one of my Buddhism's book. And etch it in your heart, because some of you will face these hardships. Okay, because आपका जो mind है ना, it's not trained to take mental pressures. आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो लाइफ में आपको आदत हो जाती है. Okay, so never give in. Okay, so youth is a priceless treasure. Youth is a priceless treasure. Okay, every painful experience, both victory and defeat, okay, both victory and defeat becomes a launch for dramatic growth in future. Okay, every hardship or victory that you're getting right now is your training for future. Okay, remember that. You young friends, call for another round of 7 bells. Okay,
because of these victories and hardships, you will shine so much that your personality will be resounding like a sound of bells. Okay, always remember that. Can you hear me? Hello. Yes, yes, we can hear you. Okay, that's all I wanted to share in the end. All right. Manishi, I just want to, sorry, Tessie, I just wanted to say, by far, this has been the most interactive session with EduBridge, and thanks to you for making it so relatable. I think each one of us could relate to you, and I think that is the reason so many students have spoken up. I have never seen so many people talking in the past sessions till date. Thank you, Muskan. And I would love to do this more. Maybe we don't need to discuss serious stuff every time. We can just do some fun next time. ठीक है? Yes, yes. Over ठीक to है, you, आज Tessie. it has been very nice for me because you made me actually revisit my whole life today. I don't know how much thankful I should be to all of you. All right, everybody, take care. Okay, take care of yourself. Bye. Thank you, Manishi, for taking out your time for the students. Not at all. Not at all. You don't have to thank me ever for this. Okay, bye. Bye. Thank you, Muskan. Thank you, everyone, for joining the session. Bye All the bye. best for your career. Bye.